गुरदाता गुरहिमकार गुरदीपक तहलोए अमर पदार्थ नानका मन मानय सुख होए। तेरे कवना कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बन ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै परवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै धन्ना वाहिगुरु साहिब जी गौरी कबीर जी। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जाके हृदय पाओ है दूजा। रे जाना माना माधो स्यों लाइए चतुराई ना चतुर भुज पाइए। रे जाना मन माधो स्यों लाइए चतुराई ना चतुर भुज पाइए। पर हर लोभ और लोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार। कर्म करत बदे अमेव मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया भूले पाए मिले रघुराया। कहो कबीर भगत कर पाया भूले पाए मिले रघुराया। परम सम्मानयोग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन ते पवित्र मुबारक हजूरी अंदर जुड़ बैठे सुभाईमान सत्संगी जनों। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर आज शाम के पहले दीवान अंदर जो सिखी लहर की लड़ी तहत ये दीवान लगातार 18 तरीक तो लैके 20 तरीक तक 3 दिन शाम के दीवान आप जी के इलाके में सजने हैं। ये तीसरे लगातार 3 दीवानों को आप गुरमतियों विचारा की सांझ सारी संगत के सांझ करनी है। पहले दीवान में आप लोगों ने को हाजिर करते हुए गुरु जी की गोद में जोड़ के बैठे हो। शाम में तो लेके होता गुरबाणी का पाठ गुरबाणी का कीर्तन अते आपने मेरे तो पहला भाई उधर से गुरु आया थे प्रिंसिपल
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ 20, 30, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ 75, 80 ਸਾਲ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 324 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ 10-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਰੇ ਜਨ ਹੇ ਸੇਵਕ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਐ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
पर अज जिन्ने भी यतन साडे समाज विच हो रहे ने बहुते चलाकियां वाले ही आ। कोई विरला ही कर्म है जिहड़ा असीं चलाकियां तो बिना भोले भा करदे आ। काम साडे चलाकियां वाले ने ते ना उहनूं असीं भोला भा दे के खिहड़ा छडाउण दा यतन करदे। आओ एक बार पंक्तियां पढ़ लईए बाणी दियां ताकि साडा मन शब्द की विचार सुनने वास्ते तैयारी भी आ सके। चेता रखियो शब्द भगत कबीर जी का है, क्योंकि विचों विचों आपां पुछांगे भी ताकि पता लगे संगत किन्नी क सुचेत बैठी है। शब्द भगत कबीर जी का राग गौड़ी है ते अंक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का 324 है। ये 3 गल्लां चेते रखनियां, बाकी गल्लां बाद विच नाल नाल याद रखनियां। मकसद इहो ही हुंदा साडा गुरु दे कोल आउण दा कि घर जांदियां तक सानू 2-4 गल्लां चेते रहन। चेते रहणगियां ते कमावांगे आपां, चेते रहणगे ते आपां गुरु दी गल मन्नांगे। सारी संगत रल के एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर आपां विचार साझे करदे हां। मन माधो स्यों लाइए रे जन, मन माधो स्यों लाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जन, मन माधो स्यों लाइए। साध संगत जी एक बेनती है, हुण तां सुख नाल मालवा बड़ा मशहूर हो गया बाणी पढ़न विच कि मालवे की सिख संगत बहुत बाणी पढ़न लग पई है। ते आ 3-3 कैमरे लगे ने, तुहाडा एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा, बाद विच इन्हां वीरां यूट्यूब ते चढ़ देना ते तुसां बाणी पढ़ के सबूत आप ही देना भी हुण संगत बहुत बाणी पढ़न वाली बैठी। मेरे तो पहला प्रिंसीपल साहब दस रहे सी ना कि बड़ा लंबा समा असीं बाणी तो बिना होर बहुत कुछ सुनिया ते बाणी पढ़ीए, गुरु की बाणी पढ़ रहे हैं आपां। संकोच के ना पढ़ो, जिन्नी क आवाज़ विच गल्लां करदे हैं गुंजा पा दो एक बार तुहाडी आवाज़ इस मैक राहीं घरां विच जाए तो जिहड़ा घर विच भी सौण की तैयारी करदा उहनूं अफसोस होवे कि मैं इस पंडाल विच क्यों नहीं पहुंचिया, मैं क्यों नहीं इस महान सरोवर में जाके इशनान किया। आओ रल मिल के जिन्नी क आवाज़ विच आपां देखो, जदों आपां गल्लां करदे ना किसी नाल लड़दे आ इत्थों रगां फुलदियां किदां। कई बारी अगला बीमार बंदा आउंदा कहंदा हौली बोल भरावा मेरी बाईपास सर्जरी हुई आ, तेरे बोलना मैं फिर हॉस्पिटल। बंदा वराशां चुक चुक के बुल फड़कदे ने जदों गल्लां करदा, ते जदों बाणी पढ़दा उदों बंदा बड़ी हौली हौली आवाज़ विच पढ़दा भी किते दूजे नालों मैं वध ना पढ़दा। बाणी दियां तुकां बड़ियां सौखियां, एक बार सुनो ते दूजी बार मुड़ के बोलो, क्योंकि बाणी च लिखिया सार रसना धन धन है, गुण गावे हर प्रभ। की आख्या जी भला केरे राम, ओ रसना धन है जिहड़ी वाहिगुरू परमात्मा दे गुण गाउंदी। आपां इत्थे किसी बंदे दी तारीफ नहीं कर रहे, मालक दीयां वडियाइयां दे विच बैठे। सारे एक बार पढ़ो जी। मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए। वाह वाह, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, मन माधो स्यों लाइए रे जाना, मन माधो स्यों लाइए,
मन माधो सोलाइए रे जाना, मन माधो सोलाइए। भगत कबीर जी कहते ने, हे जाना मन परिपूर्ण परमात्मा नाल जोड़। चतुराइयां चलाकी, देखो चलाकी बचपन तो शुरू होंदी है। कभी अपने घरों में बच्चों खेडदियां वेखना, दो बच्चों चों जिहड़ा चलाक बच्चा हुंदा ना, कई वारी नुकसान वो करदा ते कुट दूजे नूं पवा दिंदा चलाकी नाल। चलाक बच्चों विचों जे बेटा चलाक हो तो नुकसान उन्हें करना, तो मार उन्हें भैन नूं पवा देनी है। जे भैन चलाक हुई तो गलती करके शरारत करके उन्हें नुकसान उन्हें करना, कोई चीज़ उन्हें तोड़ देनी है, तो चीज़ तोड़ के आप उतों परा हो जाना। तो जदों कुट खाण की मार पैण की वारी आनी, उदों दूजे भरा दे उत्ते थप्पड़ पै जाने। ये आदत बन गई बचपन तो। चलाकियां चतुराइयां उही बच्चा विआहिया जांदा, वड्डा हुंदा, मुड़ के जीवन साथी नाल चलाकियां करदा। जे वो चलाकियां औरत विच ने ते मर्द नाल करदी है, जे मर्द विच चलाकियां ने ते वो औरत नाल करदा। जो है वो दिसदा नहीं, जो दिसदा वो है नहीं। चलाकी वही है, जो दिसदा है वो है नहीं, जो हैगा वा वो दिसदा नहीं। वो चतुराइयां चलाकियां पहला माँ बाप नाल कीतियां, फिर विआहिया गया, जीवन साथी नाल कीतियां। ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ समाज नाल करदा, पता नहीं लगन दिंदा कि मैं किदां दा। ओही बंदा मुड़ के उन्हें धर्म की वर्दी पा ली। ब्राह्मण सी, हिंदू घर च जन्म लिया तो उन्हें जनेऊ पा लिया, शरीर ने जनेऊ धारण कर लिया, मन ओही चलाकियां नाल भरिया। जे सिखी वेड़े विच जम्मिया तो उन्हें ककार पा लिया, मन ओही चलाकियां वाला। तन का सिख बन गया, मन करके चलाकियां नहीं छड्डियां। तो अपनी चलाकी दे नाल ये गल गुरु नूं आण के आंदा, महाराज बचपन तो लैके अज तक माँ बाप नूं नहीं पता लगा भी जिहड़ा उदों नुकसान कीता सी मैं कीता सी। अजे तक माँ दूजे भरा नूं दोषी मन्नी जाती, गलती मैं कीती सी, अज तक माँ नूं नहीं पता लगा। वो गुरु इस नूं मान दसदा कि अज तक मेरी पत्नी नूं नहीं पता लगा, मेरे पति नूं नहीं पता लगा कि मेरे विच ये नुक्स ने, मेरे विच ये ऐब ने। चलाकियां नाल मैं पर्दे पाई गया। वही चलाकी बिरती लैके गुरु कोल आ गया, कहता महाराज जे समाज नूं इन्ने साल नहीं पता लगा तो पता मैं तुहानूं नहीं लगन देना। पर वो भुल गया कि मां अंतरजामी नहीं हैगी, भैन भरा साख संबंधी अंतरजामी नहीं है, पर जिहदे कोल मैं आया उहदे बारे बाणी च अंतरजामी लिखिया। पता की शब्द लिखिया महाराज ने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतरजामी सब कुछ जाने उसते कहाँ छुपाया। वो ये भुल गया भी इत्थे आण के चलाकियां नहीं चलनी। चलाकियां ही है भी पुत का आनंद कर दे, घर च महाराज का पाठ लिखाया, पता भी है शराब पियानी है, वो कहते ग्रंथियां तो लुको लो, इन्हां ना पता लगे भी घर च आपां नशा भी रखिया। ग्रंथियां कोलों तो लुको लोगे, जेडे पिता नूं घर लैके आए इहदे कोलों किवें लुकोगे, तो अंतरजामी है, इनू तो सारा ही पता है। चलाकी है ना। हुण बंदा कहना जी मैं तो चलाकियां करदा नहीं, इनू तुसीं चलाकी नहीं मानते भी सारे काम पुठे करने ने। धोखा किनू दे रहे हैं, किनू धोखा दे रहे हैं जी आप। बाद विच कहने साडे पुत्र नहीं आखे लगते, बाद विच कहने साडियां नूहां साडी सेवा नहीं करदियां। बीजे बेख, पढ़ो जी उच्ची पढ़ो, बीजे बेख मंगे अमृत, वेखो ये न्याओ। हुण बाबा फरीद जी ने कितनी प्यारी गल कही, कहते चलाकियां वेखो बंदा की करदा, बीजदा किकरा ते गवांढियां नूं आंदा इनू पता की लगना, इनू बिजोर ला के दियां दाखां लगनियां, अंगूर लगने। वो कहता प्यारिया किकरां नूं तां किकरां ही कंडे ही लगदे ने, कदी अंगूर नहीं लग्या करदे। की क्या बाबे फरीद ने, फरीदा लोड़े दाख बिजोरियां, लोड़दा बिजोर ला के दियां दाखां।
किकर बीजे जट हंडे कताएंदा पैदा लोड़े पट। बीजदा कपाह आस नरमे दी रखदा, बीजदा किकरां ते मूँह चुक चुक के सारा टब्बर किकरां वाले वेखी जांदा, अंगूर लगे नहीं अजे। ते गवांढी आंदे इन्हां नूं अंगूर नहीं लग्या करदे, इन्हां नूं तां कंडे ही लगने। अज जिन्ने समाज विच कंडे बीजे जा रहे हैं, बीज तां कंडे ही रहे हैं। असीं जिहड़ा असीं बाणी दा पाठ करदे भी हाँ, थोड़ा बहुता कराउंदे भी हाँ, ये तो सिर्फ धोखा देने वास्ते है कि दूजे नूं। जिहड़ी बाणी अपने लिए पढ़नी है वो विखावे वास्ते। रोटी कदी किसी ने विखा के खाधी किसी नूं? याद रखना गुरु के सिखो, आज जिन्ने भी धर्म के कर्म हो रहे ना, पाठ हो रहे ने, रब नूं याद हो रहा, इहदी लोड़ रब नूं बिल्कुल नहीं हैगी। वो को वडियाई का भुखा थोड़ा भी मेरी को वडियाई करे। किन्ने किन्ने मंदिर, किन्नियां मस्जिदां, किन्ने चर्च, किन्ने गुरुद्वारे बने ने, सारे दावा करते सी रब की वडियाई करते हैं। बाणी ते लिखिया बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तेल ना उन ते तेल जिन्ना भी लालच नहीं भी ओदी को वडियाई करे। बंदे नूं ते कई बारी लालच हुंदा भी मेरी को महिमा करे, मेरी को वडियाई करे। रब दे अंदर भी कोई लालच है कि मेरी को वडियाई करे? उहदे अंदर ते लालच है ही नहीं। उहदे बारे ते बाणी च लिखिया, जे सब मिल के आखण पाहे, सारी दुनिया एक जुबान होके कहे रब जी तुसी बड़े वड्डे हो, रब जी ने वड्डे नहीं हो जाना। ते सारी दुनिया एक जुबान होके कहे रब जी तुसी बड़े छोटे हो, साडे क्या उन्हें छोटे नहीं हो जाना। क्योंकि बाणी च लिखिया, जे सब मिल के आखण पाहे, पढ़ो जी नाल नाल, हुण गल क्लीयर हो गई ना, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। क्योंकि जिहड़ा है ही वड्डा, उन्होंने मेरे बोला ने वड्डा थोड़ा करना, वो तो है ही वड्डा। ते जे मैं उन्होंने कहूँगा वो छोटा, मेरे क्या अच्छा कमाल की गल है जी, वो है ही वड्डा। फिर ये जिन्ना कुछ हो रहा किहदे लिए हो रहा? रब जी तुसी गुणी निधान हो, रब जी तुसी गुणा के खजाने हो, रब जी तुसी अपरंपार हो, रब जी तुसी कृपालु हो, रब जी तुसी दयालु हो। ये सारा कुछ किहदे लिए करदे? जे वो है ही वड्डा, उन्होंने लालच भी कोई नहीं, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तेल ना। फिर किहदे लिए को हो रहा? इसका जवाब सानू गुरु नानक साहब अपनी बाणी विच दिंदे ने। ये रब लिए नहीं कर रहे, मैं अपने लिए कर रहा। रब लिए नहीं कर रहे, असीं अपने लिए कर रहे, क्योंकि उन्होंने लोड़ ही नहीं है। क्योंकि उहदे अंदर लालच थोड़ा कि मेरी को वडियाई करे। ये तो इस तरह जिवें एक इलाके का कुत्ता दूजे इलाके में जदों जांदा ना, ते दूजे इलाके के सारे कुत्ते रल के उन्होंने घेर लेंदे। कुत्तियां नूं भी पछाण हुंदी भी ये साडे इलाके का नहीं, वो फिर सारे घेरा पा लेंदे उन्होंने कल्ले नूं। फिर उन्हां सारियां दे विच घिरिया होया माड़ा माड़ा भौंकदा। हुण वो जिहड़ा उत्थे दा भौंकना ना, वो किसी सिर आसान नहीं। उन्होंने पता भी जे ना भौंकिया, इन्हां 7-8 ने रल के मैनूं इत्थे पाड़ के सुट देना, लीरो लीर कर देना। उत्थे उहदा भौंकना अपने बचाव वास्ते है, वो एहसान थोड़ा कर रहा किसी लिए, वो अपने आप को बचाने लिए भौंक रहा। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने, एते कूकर हाँ बेगाना। हे रब जी, ये संसार एक ओपरा महला है मेरे लिए। इस ओपरे इलाके में मैं कला आन फसे, इत्थे एक कूकर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार इहदा अमला फैला, आसा कृष्णा। क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दौड़ कोटर तेवर खाई, 5-25 पता ही नहीं किड्डा वड्डा टब्बर इहदा। महाराज मैं इहदे विच किदां अपने आप को बचावां? एते कूकर हाँ बेगाना भौंका। पढ़ो हाँ जी, भौंका। हुण गल आ गई ना, तन ताई भौंकदा। इस मन तन नूं विषयां वकारां तो बचाउण लई भौंकदा। रोटी किहदे लई खाने भला जी? तन लई। भी जे रोटी ना खाधी शाम नूं तुरिया नहीं जाना, नटाड़ हो जाना। इशनान किहदे लई करदे आ? अपने लिए। तो फिर जी थोड़ी बहुती मैं बाणी पढ़दा, पाठ करदा, चंगे गुण धारण करना, ये किहदे लई? तो फिर लोगों को दसन की की लोड़ पई है भी मैं इन्ने पाठ किए ने। अज तक कोई रोटी खा के गुरुद्वारे अरदास कराउंदा वेखे? तो मैं 4 खाधियां, मैं सवेरे 2 खाधियां, मैं दोपहर 1 खाना।
शाम ਨੂੰ 2 ਖਾਨਾ। कभी अज तक कोई इदा का बंदा मिले मैं दिहाड़ी 2 बार इशनान करदा। जे शरीर की खुराक खानी तेरी शरीर की लोड़ है, इशनान करना शरीर की लोड़ है, तो यह भी तेरे जीवन की तेरे मन की जरूरत है। तू लिस्टां चक्की फिरदा गुरुद्वारियां विच, तू लंबिया लंबिया अरदासां कराउंदा फिरदा है कि इत्थे नाम लाउंदे इन्ने मंत्र पढ़े ने, इन्ने पाठ कीते ने, इन्ने जप कीते ने, इन्ने तप कीते ने। महाराज कहंदे तेरे शरीर की लोड़ है, तेरे मन की जरूरत है। तू किसी सिर एहसान थोड़ा करदा। जे तू 2 बजे उठदा है, तू 4 बजे उठदा है, तू 3 बजे उठदा है, तू 5 बजे उठदा है, तू 7, किसी सिर एहसान थोड़ा करदा भी तू ढंडोरा पिटदा फिरे जी मैं तो सवेरे उठदा। तू किसी सिर एहसान नहीं करदा। जे तू रोटी खाना तेरे अपने शरीर की लोड़ है, इशनान करना अपने शरीर की जरूरत है। जे तू थोड़ा बहुत पाठ करके धर्म कमाना तेरे अपने मन की जरूरत है। गुरुदेव पिता महाराज कहते इत्ते कूकर खाओ बेगाना, भौंका इस तन ताई भगतहीन नानक जे होएगा। मैनू इन्ना क भरोसा जे मैं तेरी भगती तो सखना भी हो गया तो खसमै ना ना जाई। खसमा अपना नामना नहीं भुलदा, वो अपना बिरद नहीं भुलदा। जदों उन्हें मैनू बख्शना ना उन्हें मेरे आ नहीं लिखने, कर्म नहीं लिखने। हुण ये अर्थ की है जी? साडे समाज की हो रहा भला? असीं लिस्टां चक्की फिरदे हैं, लंबिया लंबिया अरदासां। कई तो ऐसे ऐसे थां बन गए जिथे कापियां उत्ते रब बाणी इन्नी पढ़ी, इन्ने पाठ कीते, उन्हां दी अरदासां कीतियां जांदियां ने। गल की साडे जीवन की जरूरत सी। जदों ये विषय क्लीयर हो गया ना फिर वो खावे वास्ते मैं पाठ करना भी नहीं। फिर आ जड़ियां इकोतरियां हो रही ने, जिहड़े संपट लग रहे ने, जिहड़े पाठ किसी वास्ते कोई कर रहे, ये सब गल्लां समझ आ जानियां जदों पता लग गया। मेरे अज तक रोटी कोई किसी के बारे दूजा खाता वेखिया? इशनान दूजे का दूजा करता वेखिया? गड्डी साडी खराब है, आप गवांढी नूं कहे तुसीं ठीक करा लियाओ। ट्रैक्टर साडा ना चलता होवे, गवांढियों नूं कहे तुसीं रिपेयर करा लियाओ। नियाणा साडा ना पढ़ता होवे, गवांढियों नूं कहे तुसीं स्कूले लै जाओ अपना नियाणा। पुत साडा बीमार होवे, आप चाचे के पुत नूं कहिए मेरा तो जांदा नहीं, पुत तू तो 10 मिनट जाके डॉक्टर को टीका लवाया। इदां हुंदा जी? जदों आया धर्म का मसला, जदों आया धर्म का मसला, उदों एक जी टब्बर का गुरुद्वारे आके सारियां दे नां दा ही अरदासा सुधना चाहुंदा। उदों पाठ एक ने भी नहीं सुनिया। पहली गल तो हुण तां नवां सिस्टम चल पिया, जिन्हां दा पाठ हुंदा वो किते होर बैठे ने, एक भी जी नहीं। 5-6 पाठी रल के पाठ करते हैं, अरदासा सोधते हैं, वो इन्ने जी फुले नहीं समझते। वो भागा वाले कर्म आप करना पैना है। आप अपनी जिंदगी में इहो ही तो चलाकी है। रे जाना माना माधो सिंह लाइया चतुराई ना चतुर कुछ पे। चलाकियां नाल बापू की प्राप्ति नहीं होनी। तू चलाकियां करदा, चलाकियां नालों मालक वाहिगुरू परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी। तेनू चलाकियां छड़ के कर्म चंगे करने पैने ने। निर्मल कर्म, निर्मल विचारधारा अपने जीवन च लैके आनी पैनी है। हुण अज साडे इहो ही ते कारण है जिहड़ा नुकसान ये उठाया गया कि असी आप सतगुर की बाणी के कोल असी गुरुद्वारे बड़े सोहने सोहने बनाए ने, उन्हां विच प्रकाश कर लए ने, पर बाणी समझण ते विचार का प्रबंध नहीं किया पिंडां विच। इत्थे फेल आ सी। गुरुद्वारे बड़े सोहने सोहने बने ने, पर जदों बाणी पढ़न ते विचारन की गल आई, उन्होंने बैठ के समझण की गल आई, उहदे बारे असीं कोई सुचज्जा प्रबंध ना कर सके कि महाराज की बाणी सानूं की कहती है। हुण सहब सच्चे पातशाह कहंदे चलाकियां छड्ड, चतराइयां छड्ड, तू चलाकियां नाल मालक नूं पाउणा चाहुंदा। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे एक वण खंड बैसें जाए साधना देवही। कई लोग मालक नूं पाउण लई जंगलां विच चले जांदे ने, धूणियां लाउंदे ने, मौन वर्त धारण करते हैं, सद कहते हैं, आवाज़ में चुप करके बह जाते हैं। वो सोचते हैं मैं चुप करांगा तो रब मेरे ते खुश होएगा। 40-40 दिन के चलीए कटते हैं। एक पाला कक्कर भाना शीतल जल हे वही। कई इदां दे ने ठंडिया पानियां विच, गर्मी भी तो ठंडे पानी च खलोण नूं हर एक दा दिल करदा। कई सर्दियां च भी ठंडे पानी च खलोंदे ने, शरीर नूं कष्ट दिंदे ने भी ये मेरे ते प्यो खुश हो, रब खुश हो। गुरु नानक साहब जी कहते नहीं खुश होना, तू कर्म नहीं बदलता। अपने शरीर नूं कष्ट दित्तियां, शरीर दे उत्ते तसीहे दित्तियां,
मालिक की प्राप्ति नहीं होनी। एक वणखंड बैसे जाए साधना दे वही, एक पाला टक्कर पाना शीतल जल है वही, एक भस्म चढ़ा मैं अंग मैल ना धो वही। कई शरीर के स्वाह बड़ी फिरदे ने, मैल रखते ने, कहते मैल धोनी नहीं, शरीर के स्वाह मारन वाली रब की प्राप्ति करना चाहते हैं। एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खोवही, एक वो ने जिन्होंने अपने सिर ते जड़ावां वधाइयां हुई ने, वो जड़ावां वधाउण ही रब की प्राप्ति का साधन मन्ने बैठे ने। एक नगन फिरे दिन रात, कई वो ने जिहड़े नगन तुरे फिरदे ने तां ते कपड़ा नहीं पाउंदे, वो बस्तर ना पहन के रब की प्राप्ति करने का दावा करते हैं भी असी रब की प्राप्ति। अज जो कुंभ का मेला लगा सी किद्दां जांदे ने जी, सिख परिवार वाले भी तुहानूं कई श्री साहबा गल च पाइयां सब सूरत। वैसे अज तक भगवान जी चल पिया, कोई थां वेख लो तुहानूं एक अद्धा दस्तार वाला तिहार थां ते मिल ही जाना। जे किते कबर ते मेला लगा उत्थे भी मिल जाता, किते जगराता हो लिया उत्थे भी मिल जाता, किते वडभाग सौं दी चौंकियां भरियां जांदियां ते उत्थे भी मिल जाता। मतलब कोई थां है नहीं जिथे पहुँच नहीं जाता। हर थां ते जे कोई दूजिया मतां दा प्रचारक आया तो उत्थे भी पहुँच जाता, हर थां ते मत्थे टेकण। हुण कारण की है? शरीर नूं सिख बना लिया, मन सिख नहीं बने, सुरत सिख नहीं बनी। सुरत दा सिख बनने वास्ते तैनूं बाणी पढ़नी पैनी, विचारनी पैनी है। मन दा कमजोर बंदा बाहर शक्तियां का किड्डा प्रभाव कबूली बैठा। प्यारे जो गुरु की बाणी सिख पढ़दा ना, फिर डावाडोल स्थिति तो बच जाता। अज मन डावाडोल पता क्यों है? क्योंकि मन मजबूत नहीं है सतगुर की बाणी पढ़ के। जो मन मजबूत होएगा ना सतगुर की बाणी पढ़ के, फिर तुहानूं कोई हुण भुलेखा कित्थे पैंदा? तुसीं अपने घर नूं जा रहे हो, कभी किसी बंदे नूं अपने घर का भुलेखा पिया, बाहरों जा हुण इत्थों आपां सारिआं ने आपो अपने घरां नूं जाना, भावें रात ही पई आ, भला आपां नूं अपने घर का भुलेखा पवेगा? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। तुहानूं कोई तुहाडे घर दे बाहर जाके कहे भी तेरा घर है नहीं, तेरा घर हो है, मन्नांगे आपां उहदी गल? सारा पिंड कहे भी तेरा घर है नहीं, आपां सारे पिंड नाल शर्त रखण दी भी तैयार हो जाना भी मेरा घर इहो ही है। क्यों भला? क्योंकि मैनूं पूर्ण तौर पर विश्वास ते भरोसा भी ये घर मेरा। अज भुलेखा क्यों पैंदा भला? अज कोई गुरु ग्रंथ साहिब के मुकाबले में सानूं खिंच के अपने घर क्यों खड़दा? क्योंकि भरोसा नहीं कि मेरा घर ये है। इस घर के लागे अगले खिंच के गुरु ग्रंथ साहिब के लागे, गुरुद्वारे के लागे साडा घर खिंच के अगला 30 किलोमीटर अपने डेरे ते सानूं लै जांदा। इत्थों अपने घर जांदे तुसीं अपने घर के दरवाजे के अगे खलोते हो, सारा पिंड तुहानूं आण के कहे भी कित्थे चले आ? तुसीं कहो मैं ते अपने घर चले आ, वो कहेगा तेरा घर है थोड़ा, तेरा घर ते आओ परली फिरनी ते बाहर बाहर। कहे नहीं भरावा मेरा घर इहो ही है। इत्थों तक घर के जवाक नहीं आण के कहण, घर के बाकी सारे मैंबर कहण भी ये घर अपना नहीं, पर घर का मैंबर कहूगा जिहड़ा घर का मालक है भी मेरा घर इहो ही है। क्योंकि पूर्ण भरोसा सानूं अज प्रचारकां नूं जोर ला ला के दसना पै रिहा भी सिखो तुहाडा घर हाँ, पर कई इन्ने ढीठ ने वो कहते नहीं साडा घर कोई होर भी है, वो होर घर नूं भी मन्नी बैठे। मन्नी जाओ, तुहानूं कौन मना करदा? मन्नी जाओ, तुहाडी मजबूरी है मनना, तुसीं मनो। पर सानूं कलगीधर पातशाह लड़ ला के गए ने, वो कह के गए ने आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु गुरु मान्यो ग्रंथ। सानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ ला के गए ने, सानू बाह फड़ा के गए ने भी आ है तुहाडा बापू, ये लड़ लगना, ये खसम की बाणी है। इस तो सिवाय किसी होर अगे सिर नहीं झुकाउणा। मर्यादा जिहड़ी अकाल तख्त वल्लों प्रवाणित है, उहदे च बकायदा लिखिया कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर गद्दी आसन गदेला ला के मत्थे टेकने टिकाने मनमत है। हुण अजकल वेखो तुसीं महाराज के प्रकाश भी किते, बाबियां दे आसन लगे ते मत्थे टेके जा रहे। कई थावां ते बाबा बैठा भी नहीं, बाबे दे उदां ही सिरहाणे नूं मत्थे टेके जा रहे। बाबा है नहीं उत्थे, बाबे दे उदां ही गद्दे नूं मत्थे टेकी जांदे ने।
बाबे दे सिरहाने नूं भी मथे टेकी जाते हैं, बाबे दियां खूंडियां नूं भी मथे टेकी जाते हैं, बाबे दियां जुत्तियां जोड़ियां नूं भी मथे टेकी जाते हैं। हुण अंदाजा ला लो ये जिहड़े इदां दे बंदे ने उधर नूं मूँह क्यों नहीं करते, उधरों जुत्तियां पैंदियां। असल में गल ये है मगरमच्छ बड़े तगड़े तगड़े ने उधर नूं मूँह तां नहीं करते। जाके पुछो एक बार बड़े बड़े जेडे मगरमच्छ इस पंजाब में तुरे फिरदे जेडे अज तक अपने बाबियां दियां जुत्तियां ते फलैशां नूं मथे टिका रहे, कभी मूँह करो उधर नूं, नाले तुहानूं अगले दसणगे भी असीं किद्दां करदे हां। अगले मरे बाबे की गड्डी सामभ के रखी, अगलियां ने गड्डी नूं मत्था टिका रहे हैं, उधर नूं मूँह क्यों नहीं करते? कहो हाँ जी तुसीं मनमत करदे हो। भागा वाले धन गुरु ग्रंथ सानू गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ महाराज ने लाया ते मर्यादा विच लिखिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर कोई गद्दी आसन गदेला इत्थों तक किसी होर ग्रंथ का प्रकाश भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के तोल नहीं हो सकता। पर जिद की है, रब जाने की साडे कान विच किसी ने फूक मार दी है। प्यो एको ही है, जो एक तो विश्वास बोल के दूजे ते चला जाए ना उदों सुहागण वाला रुतबा औरत भी गवा बैठती है। सानू गुरुदेव ने एडा वड्डा रुतबा दिता बाणी का, खसम की बाणी है, इनू मनना पढ़ना सुनना विचारना। पता की आखिया धन गुरु अंगद साहब ने अपने श्लोकां विच पढ़ लो एक बार, किस ही कोई कोए मंझ ने मानी एक तू, किसे नू किसे ते भरोसा। मैं कहना ये श्लोक ना गुरु अंगद साहब के पहले जीवन की व्याख्या करदा। उन्होंने आख्या महाराज जिदा मैं कभी वैष्णो देवी ते जांदा रहा, जिवें मेरी आस्था किसी होर ते सी, मेरे वर्गे कई होर भी होणगे। जिदा मैं कभी रहा हो सकता किन्ने होर भी होण, पर अज मैं दावे ना कह सकदा कि अज मेरा तुहाडे तो बिना कोई होर आसरा नहीं है। पहला की गल नहीं, गल होण दी कर रहा मैं। किस ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, मंझ नूं मैनू निमाणी नूं एक तुहाडा ही भरोसा। क्यों ना मरी जैरोए जाग चेत नया वही, मैं मर क्यों नहीं जाता जदों मैनू तुसी भुल जाते हो। मैं तुहानू पूर्ण तौर पर अपने अंदर विश्वास बिठा चुका, पूर्ण तौर पर मैं तुहानू मन चुका। तुहाडे तो बिना मेरी कोई आस्था नहीं, मेरा कोई विश्वास नहीं। धर जियरे एक टेक तू लानी आस, नानक नाम प्याई है कारज आरास। भरोसा एक ते रख, एक मालिक ते यकीन रख। रे जाना मन मा दोष लाइए, चतुराई ना चतुर भुज पाई है। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। ध्यान ना सुनना, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी ने साडा प्यार एक परमात्मा ते बनाउण लई किड्डे सोहणे विचार बख्शिश कीते। किन्ने विचार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में जिहड़े साडे अंदर विचार पक्के करदे भी रब इक्को ही है। कहंदे क्या जप तू मंत्र जपी जाना है, की लाभ है उसका? क्या तप शरीर नूं कष्ट दे रहे हैं। वैसे तप भी दो किस्म के, जोगी लोग भी तप करते सी, धूणियां तपाउंदे सी, पर जिहड़ा गुरमत विच तप है ये प्रवान है, सेवा भी तप है। जदों लोह ते प्रशादे पकदे ने, देगां दाल दियां तैयार हुंदियां ने, पसीने छुटदे ने, ये तप गुरमत विच प्रवान है। इस तप का फायदा भी गर्मियों के विच भी भैणां वीर रल के जदों प्रशाद पानी तैयार करते हैं, ये तप प्रवान है। पर बिना वजह धूणियां तपा के बैठे से ने, शरीर नूं कष्ट दे रहे सन, वो तप प्रवान नहीं। पर भगत कबीर ने पता की आख्या, कहते क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा। तू व्रत भी रखदा, तू पूजा भी करदा, तू कई प्रकार के मंत्र भी पढ़दा, पर जाके हृदय भाव है दूजा। जे तेरे अंदर एक रब तो बिना किसी होर प्रति भी प्यार आ, तेरे सारे कीते हुए बाहरले शरीर के तल पर कर्म, इनका की लाभ है? क्या बात है, की फायदा, की लाभ है?
2 मिनट अपने घर झात मारीए आप मर्द औरत को हर प्रकार की सहूलत दिंदा हो, कपड़े भी वधिया बना के दिंदा हो। ध्यान ना सुनना मेरी भैनों वीरो, मर्द अपने परिवार के मैंबरां नूं, बच्चियां नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं हर सहूलत दिंदा हो, कपड़े भी वधिया, खाना भी वधिया, पर उहदा प्यार अपनी पत्नी तो बिना किते होर डुल जाए कि औरत प्रवान करेगी? कि औरत ये बर्दाश्त कर लेगी भी कपड़े वधिया दे रहे, ठीक है मेरा पति, जे पासे इहदा ध्यान जाता तो कोई गल नहीं। इदां ही मर्द है, जे औरत खाना वधिया बनावे, घर विच बच्चियां नूं नवावे पियावे, सेवा संभाल करे, जे उहदा प्यार, जे उहदा विश्वास किते होर जाए तो औरत नूं मर्द प्रवान करेगा। दोवां ने एक दूजे नूं प्रवान नहीं करना। तो महाराज कहते हो तू बाकी सारे कर्म बड़े वधिया करी जाना शरीर के तल उपर, ते मन विच किसी होर नूं भी टिकाई करदा। जे तू अपना जीवन साथी प्रवान करन नूं तैयार नहीं, तैनूं गुरु किवें प्रवान कर लू? तू तो अपने मन विच एक चीज़ लैके नहीं आती, मन विच तेरे कुछ हो जाए तो मुख विच तेरे कुछ होर है। की लिखिया भला सतगुर ने बाणी विच जी, की आख्या जी भला? एक ते भरोसा, मन विच कुछ होर है तो मुख विच बाबे फरीद दे बचन पढ़ो, दिलों मोहब्बत जिना से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जे मन विच होर है तो मुख विच कुछ होर है। रहत अवर कछ अवर कमा, मैं कहना महाराज के अगे खलो के भी किड्डा वड्डा झूठ बोली जाते, कही जाते सब सिखन को कि मैं गुरु माने हो, तो भरोसा किसी होर ते भी है। जिवें सिर गुरु ग्रंथ साहिब अगे झुकदा उदां ही बंदे आगे मड़ियां कवरां ते झुकी जांदा, फिर भी कही जाते असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हां जी। किदां मनण दी की डेफिनेशन समझ नहीं आई अजे तक, भी मनण दी की डेफिनेशन है, की परिभाषा की है? भी मनण दा अर्थ है भी गुरु तो सिवाय किसी होर दी लोड़ ही नहीं। अवर ना सूझा, पढ़ो, अवर ना सूझा। दूजी ठार जिन्हों यह भरोसा आ गया हुण आपां शहर जाइए, ताए का पुत होवे शहर, ते ताए का पुत प्यार करता होवे, वो डीकन दिया होवे जो शहर जाना, ते ओहदे हुंदियां मैनूं किसी होर दे घर वाल वेखण दी लोड़ है। जिन्हें पहला कहता आ जा तू मेरे को रात नहीं आण के, ठार दा अर्थ है ना टिकाणा। आप पिंडों शहर जाइए तो ताए का पुत शहर रहिंदा होवे, वो कहेगा आ जा मेरे को रही रात, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ 4 ਰਹਿ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? हार परे तो दुआरी, हार के हंब के मैं तुहाडे दरवाजे पे आन लगा। इस करके बाबे कबीर ने आख्या क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। जे तेरे अंदर दूजा भाव आ गया, तेरे शरीर के तल पर किए हुए सारे कर्म व्यर्थ चले गए। कर्मी सहज ना उपजे, विण सहजे सहसा ना जाए, शरीर के तल पर किए हुए कर्मां नाल तेरी जिंदगी विच कभी सहज नहीं आना, तो सहज नहीं आएगा तो अंदर का सहम नहीं टुटना। इस करके पर हर लोभ आ त्याग, पर हर लोभ अरे लोकाचार, ये लड़ी वेखो किदां बनदी। लोभ का संबंध लोकाचार नाल है। लोभी बंदा फिर सारे काम लोकाचार नहीं करता। लालची बंदा बड़े बड़े अहुदियां ते बह के रिश्वत लैंदा, रिश्वत लैके फिर अपने पुत्रां धीआं दे विआहां ते वितों वध खर्चा करदा। लोकाचार, लोग खुश होण, लोग कहण भी बल्ले 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 फलाणे दे पुत दे फलाणे दी धी दे आनंद कारज ते गए, शमियाना कमाल दा लाया, कमाल दी उन्हें रोटी बनाई, कमाल की डेकोरेशन की। पहला लोगों के घर लुट के पैसा इकट्ठा किया, फिर लोगों को खुश कर ली उजाड़ दिता। पर हर लोग छड़ दे लोग और लोकाचार, लोकाचारी का संबंध लालच नाल है।
लालची बंदा फिर लोकाचारी भी वितों वध खर्चा भी करता, दुनिया को खुश भी करता। संगत है ना, लड़ी बनी हुई है। भगत कबीर जी कहते ने चितराइयां चलाकियां छड़ दे, तू चलाकियां अपनी जिंदगी में लिया के लालचवश हो के ठगियां मारदा, बेईमानियां करदा। कभी तुसी वड्डे वड्डे अफसरां दे पुत्रां धीआं दे विआहां ते वेखो, जिन्हां ने रिश्वतां लै लै के वड्डे वड्डे घर कारोबार खड़े कीते। जदों उन्हां दे बच्चियां दे विआहां ते जाओगे तुसी, गरीब बंदा सोचदा 5-7% व्याजी पैसा चुक के मैं रिश्वत दी तो पैसा किदां उजड़ रहा, खुश लोगों को किया जा रहा, दुनिया को खुश किया जा रहा। पर लोग खुश होए? लोग तो फिर खुश नहीं होए। पागा वाले कई कोल ते हुंदी है माया, कई कर्जे चुक चुक के भी फा लेंदे। जे दो परिवार, मैं कहना इस समय में जिहड़ा उजाड़ा हो रहा ना, सिख रहत मर्यादा मुताबिक तो आनंद कारज बड़े सादे कर सकते हैं आप, वो चाह विखावे वाली गल्लां है ही नहीं। लड़की लड़के परिवार वाले दोवें जाने जे सहमत होने एक दूजे नाल, कुछ बराती खड़ के लड़के वाला लड़की नूं विआह के घर ले आवे, वो अपने घर प्रशादा पानी खवा देन, वो अपने घर खवा देन, ते खर्चा कोई भी नहीं। खर्चा आनंदकारी ते नहीं आउंदा, खर्चा आउंदा नक रखण ते, लोकाचारी ते। हुण तुसीं दूर की जाना, विआहां शादियां वेले आ जिहड़ी वरी बनदी है, एक गुरमत मुताबिक थोड़ा भी उन्होंने सूट देना है, इन्हें सूट लेना, एक गुरमत वाला ये लोकाचार है भी दुनिया के लोगों साडा प्रभाव पवे। 2 मिनट कभी बैठ के परिवार बैठ के सोच लो, जो दोवें परिवार सोच लैन भी ना कपड़ा लेना ना कपड़ा देना, कितना खर्चा बच सकता। पर यह सारा संबंध साडे लोकाचार दे नाल जुड़ गया भी दुनिया के लोग खुश होण भी बल्ले बल्ले उहदे पुੱਤ दे विआह ते गए। जे साडी भैन पेके सहुरे आ रही है, वो इदां दा प्रभाव लैके आ रही भी मैं पेकियां तो इदां दे सूट लैके आवां, दराणी दे सामने मेरा प्रभाव पवे कि मेरे पेकियां ने बहुत वधिया समान दिता। वो भावें अपने पेकियां वाले दी मुड़ के लकीरां कढावे, पता नहीं बेचारे किदां उठ के, कई धीआं भी इंज करदियां, गुस्सा ना बनाना, कई धीआं भी आण के नासां ते दम करदियां ने मापियां दा भी मैं जाके जसानी दे विच किदां टौर बनाउणा, मैं सस नूं किदां मुड़ के दसूंगी भी मैं आ करके आई हाँ। ये समस्या है सब तो बड़ी। जे साडे परिवारों में गुरमत आ जाए, ना धी पेकियां नूं तंग करे, ना पुत सहुरियां नूं तंग करे, सारे समाज। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कोई मंत्र नहीं, ये प्रैक्टिकल जीवन जाके जो असीं दूजियां दीयां कदरां कीमतां समझ के, इहो ही ते बेगमपुरा शहर को नाम है। इत्थे दुनिया ते पीड़ी पई है, जिवें गन्ने नूं तुसीं वेलदे विचों दी कढो ते पीड़िया जांदा, रस कढिया जांदा, फोग सुटिया जांदा। दुनिया दा ते फोग निकलिया पिया, रस कढिया पिया। लोग तां पीड़े पे ने, कदी सोच के वेखिया किन्ना हालातां विचों किन्ने नगर कीर्तन, किन्नियां प्रभात फेरियां, किन्ने समागम हो रहे, दुनिया तरा तरा करदी फिरदी है। जे सारा कुछ धर्मी हो रहा तो दुनिया दुखी क्यों है? दिन दिहाड़े धीआं दे गल वड्डे जा रहे हैं, दिन दिहाड़े धीआं दे नाल रेप किए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े इत्थे घटनावां वापरदियां ने। फिर जे सारा कुछ धर्मी हो रहा तो राक्षस कित्थों पैदा हो रहे हैं? इहदा अर्थ है धर्म नहीं, धर्म बंदिया निर्मल विचारधारा है जिहड़ी तेरे कर्म बदलदी है। सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जदों कर्म निर्मल हो गया ना, और जिंदगी की शैली तेरी बदल जानी है। अजे ते पशुओं वाला जीवन जी रहे हैं, अजे ते हैवाना वाला जीवन जी रहे हैं, शैताना वाला जीवन जी रहे हैं। गुरु की बाणी सानू देवते बनाउंदी है। बलिहारी गुरे अपने देवहारी साधवार, जिन मानस ते देवते की करत न लागी वार। अजे बाणी सानू देवते बनाउंदी है, पर कदों बनाउंदी है? अपने अंदर दे विचार बदल, तब्दील कर। महाराज कहते ने पर हर लोभ लालच छड़। जो तू लालच छड़ दिता, लोकाचार भी छड़ देना तू, क्योंकि जो तेन पता तेरी कमाई लिमिट दी होई, एक दायरे दी होई, तू लोकाचार करना ही नहीं। पर हर लोभ और लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, इस चीजें छड़ दे। लोभ छड़, लोकाचार छड़, पर हर काम क्रोध
अहंकार काम वासनावां छड्ड, क्रोध छड्ड, हंकार साडी चीज़ां छड्ड दे। कर्म कर तबदे अमेव। ये दुनिया के लोग शरीर के तल उपर कर्म करी जाते हैं, शरीर के तल उपर नाल होने च भी बजे पे ने। कर्म कर बदे अमेव मिल पाथर की करही सेवा। सारे मिल के केड़ी सेवा करते जी भला? उची बोलो जी, कहदी जी भला? पत्थरों की। अच्छा वो पत्थर भावें मिट्टी का होवे, वो पत्थर कोई भी हो, अज पत्थर ही है ना। अड़िया कबर है की है जी भला? बोल के दसो साध संगत जी, पत्थर नहीं है। मिल पाथर की करही से। भगत कबीर जी कहते ने कर्म करत बधे मेल। शरीर के तल पर कर्म करी जाता पर नाल होने च भी बधा। जदों बाबे कबीर ने शब्द उच्चारण किया भी पखानगढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे मूर्त साची है तो गढ़ नारे खाओ। अच्छा नाल कबर बनाने वाले तेनू समझ नहीं आई भी जो बाबे कबीर ने आखिया भी जे मूर्त सच्ची है तो जिन्हें बनाया सब तो पहले उन्होंने खांदी। आपे ईटा लाते, आपे कबर बनाते, बाद चुकणगे बाबा बड़ा जारा। इदा कहते हैं ना, बाबा बड़ा, नाले भी कहते जगह बड़ी जारी आ। जेड़ा उत्थे मत्था ना टेके बाबा उहदा नुकसान बड़ा करदा। जिथे 4-5 बारी एक्सीडेंट हो जाना, मुड़ के उत्थे पाठ लिखाया जाता, मुड़ के हौली हौली उत्थे गुरुद्वारा बन जाता। फिर उस गुरुद्वारा नाम रखते शहीदगंज गुरुद्वारा का नाम बनाते उत्ते। वो आने वाली 5-7 पीढ़ियां ने पूछा करना भी शायद इतने कोई अंग्रेजों वेले सिखा की जंग हुई होनी आ, जां इतने कोई सिखा दी आपस कोई घटनावां वापरियां होणगियां। इदां गुरुद्वारे बहुत होंद विच आए सड़कों के कंढियां ते, जिथे 4-5 बार लगातार एक्सीडेंट हो गया, घटनावां वापर गईयां। ते साडे लोग इन्हां गल्लां नूं लाई लग बड़ी छेती। ये काम बड़ा सौखा, महाराज दा स्वरूप खाणगे, उत्थे ट्राली विच प्रकाश करनगे, पंडाल लाउणगे, 3 दिन अखंड पाठ चलूगा, समाप्ति होएगी, मुड़ के उत्थे बाबा जी आउणगे, फिर कीर्तन होगा, लम्मिया लम्मिया धारना पढ़िया जाएगियां, जलेबियां पकौड़ियां के लंगर लगणगे। फिर उत्थे अरदास की जाऊगी सरबत के भले की कि महाराज इहो जिहियां विपतावां तो सानू टाळो। ये नहीं कहना भी पुत्तां नूं नशियां तो हटाओ, महाराज तुसीं भला करो साडा। अपने बच्चों नूं असीं पता सारा कुछ कर करा के रब की ड्यूटी ला देने, पुठे काम करन आप बंद थोड़ा करते हैं। अरदास तो यह करनी चाहिए महाराज असीं अपने कर्म बदल दिए, असीं अपनी आदतां बदलीए, असीं सारा कुछ कर करा के ना ड्यूटी फिर रब की ला दें। अजकल नवा समागम चल पिया सरबत के भले की अरदास। वो भले जो रब सारिਆਂ का पहले भला करता उन्होंने चेता कराने की लोड़ है। बाणी च लिखा सतगुर सबना का भला मनाएगा, जो पहले भला करता उन्होंने याद कराने की लोड़ है कि महाराज इन्हों भला करे। महाराज तो कहते हैं मैं तो तुहाडा भला किया हो, तुहानू समुंदर दिते, तुहानू रुख दिते, तुहानू दरिया दिते, तुहानू नदियां नहरां दित्तियां, तुहानू धरती दित्ती। और राक्षो तुहां इत्थे नरक बना के रख दिता। मैं तो तुहाडा एडा वधिया भला किया, मैं तुहानू धरती दित्ती, इहदे विच बीज पाओ ते अनाज पैदा होंदा, तुसीं पुੱਤ ਧੀ पाओ अपने, तुसीं समाज विच वधिया जिंदगी जियो, तुसीं ते तबाही मचा के रख दित्ती। अज जोग दे संसार ते रेप हो रहे, चोरियां हो रही, डकैतियां हो रही, करप्शन हो रही है, ਧੀਆਂ ਨੂੰ कतल किया जा रहा। एक पति दिन दिहाड़े पत्नी ਨੂੰ मारता है, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ रात बाह फड़ के तेरे घर पुੱਤ नहीं ਹੁੰਦਾ बाह फड़ के बाहर ਕੱਢਿਆ जा रहा। ये रब ਨੂੰ कहने की लोड़ है कि बंदिਆਂ ਨੂੰ कहने की लोड़ है? अगले ਨੂੰ हथ मारो, ये किहनूं कहने की लोड़ है जी? बोल के दसो साध संगत जी, रब ਨੂੰ कहने की लोड़ है भी इदां दे काम ना करो? ये उन्होंने कहने की लोड़ है ਜਿਹੜੇ 4-4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। वैसे मैं कहना फिर भी चंगी गल है। महाराज ने आख्या कुत्ते को सिख स्वामी के गरे ज्यों सदा स्वान तनी नित। वैसे कुत्ता तो पहले बंदगी करता, जेडे दर दा टुकड़ खाता ना, अद्धी रात भी किते घर का मालिक आवे तो पैर सूंघ के दस दिंदा भी घर का मालिक है।
ये तो सानू दिन वेले भी नहीं पता लगता घर का मालिक है। दिन दिहाड़े भी असी अपने जीवन साथी को मार दें, पता लगता सानू। फिर असी कहना जी, फिर ऐसे बंदे आन के पुछते ज्ञानी जी कुत्ते की जून होती है, फिर कहना पैंदा तेरिया दो लत्तां कुत्ते दियां चार, फर्क इन्ना ही आ, तेरे पूछ है नहीं, तेरिया लत्तां दो ने ओदियां चार ने, काम तेरे कुत्तियां वाले ने। मैं नहीं कहता, गुरु नानक साहब की बाणी कहती मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता, तेरे काम ते कुत्तियां वाले ने। फिर भी कई कुत्ता आंदा होगा, ओ बाबा नानक जी तरस करो, इन्हां कुत्तियां नाल मैनूं लाई जांदे हो, मैं तो फिर भी वफादार हाँ। इन्हां बंदियां दी मेरे नाल तुलना करके मेरी बेइज्जती ते ना कम से कम करो। मैं तो जेड़े घर की रोटी खाधी उसका नुकसान नहीं किया, ये तो चार लावा लैके इनू कतल करने तैयार हो गया। इनू झुड्डू नूं पता ना लगा जो लावा लैन लग्या ते बाप ने पल्ला फड़ाया, इनू एक बार शर्म ना आई। कभी सोच के देखो किहड़ियां हालातां में सारा समाज पहुंच गया है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सानू इन्ना उच्चा ते सुच्चा चुकदी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो, शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जो ना आखियन पशु। 1418 अंक ते गुरु अमरदास का शब्द पढ़ के रात को सोयो। जिन्हों घर में बाणी दियां पोथियां हैगियां, एक बार हलूण देगी बाणी भी जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो, शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जो ना आखियन पशु। ढोर गवा किड्डे प्यारे उच्चे सुच्चे विचार सतगुर की बाणी सानू बख्शिश करती है। किन्ने उच्चे सुच्चे किरदार की गल सानू बाणी सिखाती है। साहब ने किड्डियां कीमती विचार दी। इस करके महाराज आख्या कर्म करत बद्धे अहमेर, मिल पाथर की करही सेव। अखीर में पता की आंदे भगत कबीर जी कहते कहो कबीर भगत कर पाया। भगत दे तत्ते नूं सिहारी अजेदार ते भगती कहते उस रब नूं चलाकियां नाल नहीं पाया जाना। की तरीका पाउण दा? भगती। भगती की विण गुण कीते भगत ना होए। बिना गुणा तो कोई भगती नहीं। परिपूर्ण परमात्मा के गुण धारण करने ही उसकी इबादत है। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिल अज्ञानता ते भोले पाए च फर्क है। कई कबर मड़ियां की पूजा करन कहते जी भोला पा, ये भोला पा नहीं अज्ञानता। भोला पा बच्चे च हुंदा। सस की नोह ना बनती नहीं, नोह सस नूं बुलाउंदी नहीं, पर बच्चा ना दादी नूं फिर भी बुला लेंदा। दादी वाल वेख के हस पैंदा। दराणी जठानी नूं वेख नहीं सिखाउंदी, पर बच्चा ताई वाल वेख के फिर भी हस पैंदा। कदी वेखना तुसीं कईयां घरां च दराणी दा जठानी नाल बोल बाला नहीं हैगा, पर दराणी दा बच्चा ताई वाल वेख के ना हस पैंदा। ताई फिर इशारा मारदी, उहदा नाल ताई डरदी भी आ भी जे किते उन्हें वेख लिया तो उन्हें कहना भी तू किदां मेरे पुत नूं हथ लाया। पर इशारा करदी बच्चा आ जांदा, उन्होंने दुध पिआउंदी है, उन्होंने खिडौने दिंदी है, उहदे नाल प्यार करदी है। हुण अंदाजा ये भोला पा, उन्होंने इशारा प्रगट कुछ नहीं पता भी मेरी माँ की मेरी ताई नाल नहीं बनती, मेरी माँ की मेरी दादी नाल। ये भोला पा, ये भोला पा तेरे च आ जाए, किते तेरे चो वाल फरेब ठगियां बेईमानियां ये शाल कपट निकल जाए, तेरू समझ आ जाए। भोले पाए कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिला रगड़ाया। ओही बच्चा तुसीं वेखियो कदी बचपन च जदों छोटा हुंदा उहनूं कोई मेर तेर दा पता नहीं, पर ज्यों-ज्यों वड्डा हुंदा फिर स्कूलों आउंदा ते गली च ताई खलोती उहदे वल वेंदा भी नहीं ते अपने घर वड़ जांदा। ताई वेंदी भी है ओही आ, अज क्यों नहीं वेखिया? उहनूं ये नहीं पता होने ने माँ बाप की संगत कर ली, हुणे वड्डा हो गया। पहला रुख छोटा सी लचक सी, रुख वड्डा हो गया, हुण इहदे विच कठोरता आ गई। जिहड़ी निर्मलता बच्चे चा वो हौली हौली वड्डा ज्यों-ज्यों विकास करदा फिर वो चीज़ां वेखिया। निक्के निक्के बच्चे किदां ताए चाचे की गोदी च खेडदे आ, मुड़ के वेखना भी सिखाउंदे नहीं। ना ताया रहिंदा वो, ना चाचा रहिंदा, ना वो बच्चे रहिंदे। कठोरता भरी जांदी। गुरु बख्शिश करे समझ आ सके सानू जिहड़ी गल गुरमत ने सानू सिखाई, असीं अपने जीवन में उच्चा ते सुच्चा चुक सकीए। मालिक कृपा करे ये पावन शब्द भगत कबीर जी का उच्चारण किया। वैसे दीवान का टाइम 7 तो 10 है साध संगत जी, पर संगतां लेट आईयां। हाथ जोड़ के निमरता सहित बेनती है कल टाइम सिर पहुँचने का यत्न करना, क्योंकि संगतां दूरां नेड़ियां तो आउंदी है, मगर सवाल जवाबां का समा भी बच जाए। जिन्ना तुसीं पहलां आओगे उन्ना आपां समा विचारां दा वध कर सकते हैं। इस करके हाथ जोड़ के बेनती, टाइम ना आओगे टाइम ना दीवान आरंभ होएगा तो आपां वध समा बैठ के गुरमत दीयां विचारां दी सांझ कर सकते हैं। तो हुण अखीर विच
जिन्हां दे मनां विच कोई गुरबाणी प्रति सवाल है, इतिहास प्रति सवाल है, वो वीर गुरजन सिंह जी रूपोवाले नूं तुसीं लिखा देना। तो इत्थे सवालों के जवाब प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पनवा ते वीर सुखविंदर सिंह जी ददेर गुरबाणी की रोशनी में संगतां दे नाल विचार साझे करनगे। सवालों के जवाब देना साडा फर्ज है। गुरबाणी की रोशनी में उन्हां नूं मनना ना मनना संगत की अपनी मर्जी है। विचार गुरबाणी मुताबिक दिते जा सकते हैं, पर किसी नूं मनाया थोड़ा जा सकता कि तुसीं जरूरी इहनूं मनो। मनना ना मनना साडे अपने मन की मर्जी है। पर कई बार श्रोता सोचता कि सवाल का जवाब ही मेरे मुताबिक दिता जाए, ये नहीं होना। सवालों के जवाब गुरु की बाणी मुताबिक दिते जाने ने। इस करके बेनती है, जिन्हों के मनां विच कोई बाणी प्रति कोई इतिहास प्रति सवाल होवे, आप जी इत्थे दस सकते हो, बोल के लिख लैणगे ते सवाल बोलणगे ते नाल नाल जवाब दिते जाणगे। ते कल नूं टाइम सिर, क्योंकि तुसीं 7:30 बजे भी पहुँच जाओ तो आप 8 बजे भी दीवान की रहमता कर दी, क्योंकि पहला बाणी का कीर्तन भाई साहब करते हैं। सानू पता तुसीं रजेनियां भरी जिंदगी विचों समा कढ के आउंदे हो, पर रोज़ रोज़ इदां दे प्रबंध नहीं हुंदे, ना रोज़ इदां दे पंडाल लग सकते आ, ना इदां दे रोज़ ही प्रबंध किए जा सकते आ। इन्हां वीरां ने कई महीनों तो लगातार मेहनत की आ, ते साडा भी फर्ज बनदा कि टाइम सिर इन्हां 2 दिन आपां रहे दीवान वाले रहिंदियां दीवानां 'च पहुँच के रल मिल के बाणी दियां विचारां दी सांझ कर सकी। आओ मैं हुण वीर गुरजन सिंह जी रूपोवाले नूं बेनती करांगा, वो संगतां दे नाल कुछ समा जिहड़े तुहाडे वल्लों सवाल आए ने बिना झिझक। कई बारी ना सवाल हुंदा आपां संगी जाने, झिझक हुंदी है जी मैं पुछां कि ना पुछां। पुछो जरूर, जिन्नियां सवालों के जवाब अज होणगे ठीक है, बाकी रहिंदे कल, जिहड़े कल रह जाणगे परसों, जिहड़े परसों भी रह जाणगे, जिहड़े बाकी दीवान बाकी गुरुद्वारे सजने ने उन्हां विच साझे कीते जाणगे। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है कि ताकि बाद में भी इनू आपां सुनिया जा सके। आस है इस बेनती को प्रवान करोगे। भुला चुका माफ, गुरबाणी की विचार करदे जेड़े शब्द चंगे लगे मेरे नहीं, गुरु जी के समझ के हिरदे विच वसा लैणे। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।